Okay, class. So this is the last question from the quiz. Okay, it's not in the previous video. That's why I'm including it over here. Now it says G company had cash of 13,000 on hand on January 1st. So what is this? On hand on January 1st. You guys opening. Okay, so this is opening. During the year, the company expected the following cash collections from customers by quarter. Now this is by quarter. ठीक है? आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस आपके क्विज में थे सारे बाय क्वार्टर थे. So that means you are expecting by quarter in your exams as well. ठीक है? लेकिन कुछ भी हो सकता है एग्जाम. ये बात है. कुछ भी. Okay. So first, second, third, fourth cash collections are given. Direct material purchases in tons were budgeted as follows. Okay. Direct material purchases. ये आप लोगों ने क्विज में क्या किया? यहाँ पे लिखा है tons. If this is given in tons, then that means you need to convert it into cash. और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है या नहीं? 40 लेवल है. You not produce वाला. नहीं, मेरे ख्याल में गिवन नहीं है. फिर भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इज गिवन और नॉट. Direct material purchases 65, 75, 55, 50. The production budget showed the following unit production by quarter with an average labor rate of 40. The production budget. So this is the production budget and units to be produced. And the wage rate is given. ठीक है, wage rate given है आपके पास. G company plan to pay dividends. Dividend की payment per quarter during the year. हर क्वार्टर में आपके पास डिविडेंड है. ओके, आगे चले. During July, new equipment costing 60,000 will be purchased. सिर्फ जुलाई में equipment purchase है. In addition, 16,000 was spent installation cost during the fourth quarter. Fourth quarter में एक और expense है 16,000 का. The company was required to maintain a minimum cash balance of 15,000. This is your minimum cash balance. A line of credit was available for short-term borrowings in increments of 1,000. Line of credit आपके पास है. Maximum amount given नहीं है ना? नहीं है. और आप 1000 के इंक्रीमेंट्स में ले सकते हैं. मतलब 1000 रुपए, 2000, 3000, 4000, 5000. ओके. और borrowings will be paid at the beginning of a quarter and repaid at the end of the quarter. यानी क्वार्टर वाइज है. पहले क्वार्टर में पैसे लेंगे तो उसको दूसरे क्वार्टर के एंड में वापस कर सकते हैं. ठीक है? ओके. Interest on the short-term borrowings will be paid at 0.5% per quarter of the amount repaid in any quarter when a loan repayment is made. All other interest expense will be accrued each quarter. Prepare a cash budget. इसका मतलब ये है कि वो जो हम जिस पॉइंट को देख रहे थे वो कहीं भी नहीं है. That means this is not tons. You need to, if it is in tons, then you should have been given per unit, per ton cost, ताकि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नहीं गिवन थी इसका मतलब इसको आप डायरेक्ट थाउजेंड्स में लेकर सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये एक छोटी सी मिस्टेक है इन द क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट जी. कैश कलेक्शंस आर गिवन. ओके, कैश कलेक्शंस गिवन है. इसके नीचे डायरेक्ट कैश पेमेंट्स लिख देते हैं. ठीक है, कैश पेमेंट्स और डिसबर्समेंट्स. नाउ कैश डिसबर्समेंट्स. द फर्स्ट वन इज फॉर डायरेक्ट मटेरियल. यस सर. ओके, डायरेक्ट मटेरियल की डिसबर्समेंट्स आपके पास गिवन है 65, 75, 55, 50. इसको भी नहीं लिखते. ठीक है, लेट्स मेक इट शॉर्ट. जो चीजें नहीं लिखी हुई उनको लिख देंगे, जो ऑलरेडी गिवन है उसको नहीं लिखते. ओके, सो दैट इज गिवन एज वेल, कैश पेमेंट्स. उसके बाद जाए, द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन बजट फॉर द फॉलोइंग यूनिट प्रोडक्शन बाय क्वार्टर. Average labor rate of 40 and units to be produced are given. So you need to 40 multiply. You need to multiply 40 with Cost. what? 1500 for the first quarter. That would be 60,000. 60,000, 20,000, 2,000, 80,000. 80,000, 1,700, 1,700, 68,000, 60,000. and 60,000. Yes. Okay. Total उसने कहीं पे कहा है by quarter and for the year in total. Okay. So 60, 80, 68, 60. 23, 368. 268. Sorry, 268. Okay, 268. Okay, let's move on. G company planned to pay dividends of 10,000 per quarter. So dividends are 10, 10, 10, 10, 40. ठीक? Okay. An additional, during July, new equipment costing 60,000 will be purchased. Equipment. 60,000 in July. July was quarter. Third quarter. Third quarter में July and the amount is 60,000. 60,000. ये भी हो गया? Okay. An additional 16,000 was planned for installation cost during the fourth quarter. So additional इसके साथ यहाँ पे installation भी लिख देते हैं ताकि एक ही लाइन हो. ठीक है? Fourth in the 16th quarter. So that makes a total of
26. Okay, ये भी हो गया. The company was required to maintain a minimum cash balance. Okay, बस अब सारा काम खत्म हो गया. Ending balance. हाँ, एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस. अब आपने क्या करना है? सब कैश कलेक्शंस को टोटल करना है, सब कैश पेमेंट्स को टोटल करना है. ओके, सो यू नीड टू राइट एक्सेस और डेफिशिएंसी. ओके जी. नाउ कैश कलेक्शन वो सबसे ऊपर गिवन है 110. 110 माइनस क्या करना है? 110 माइनस 65 और उसके बाद ये वाली चीज सिर्फ 13,000 प्लस करेंगे. 13,000 प्लस करेंगे. हाँ, 13,000 प्लस करेंगे so that you know कि what is your, 140. so that means you need to write the opening balance as well. Yes. Opening balance first. The opening balance January 1st में कितना था? 13,000. 13,000. Now you need to tell me whether there is excess or deficiency. Okay. So now 110 plus 13. ठीक है? 123 minus 65 minus 60 minus 10 minus 12,000. So 12,000 is your Deficit. deficiency. And you need to have a closing balance of how much? 15. 15. 27. तो इसका मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. So your borrowing would be 27. 27. This is clear. Yes. This 15 will become Opening. opening over here. So now you have 177,500 plus 15,000. ठीक? This is your cash collection. ठीक है? हो गया? Yes, sir. Minus 75,000 Yes, sir. minus 80,000 minus 10,000. 27,000. 27,000 excess. 500. 27,500 excess. Yes. Okay, excess. Now in the second quarter, this is the second quarter. Yes, sir. Okay, can you pay back your loan? No. नहीं पता सर. वो नेक्स्ट में करेंगे. सर आपने कहा था कि जब तक फुल नहीं कर सकते तब तक. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है कि किस तरह है, ठीक. लेकिन अगर वैसे आपको ये क्वेश्चन पता ना होता ना कि ये आगे किस तरह जाएगा, ठीक. तो अगर आपको पता नहीं है कि आगे किस तरह जाएगा, आप देखिए 27 में से आपको मिनिमम कैश बैलेंस कितना चाहिए? 15. 15 चाहिए. लेट्स से मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ. बाकी पैसे कितने बच गए? 12,000. 12,500. अगर मैं कहता हूँ कि 12,500 रुपए यहाँ पे वापस कर दूँ, ठीक है, अगर मैं वापस कर भी दूँ तो 12,500 मुझे खाली वापस नहीं करने, मुझे साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक. तो मुझे कोई और अमाउंट सोचनी पड़ेगी और उसके साथ फिर इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा. फिर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है. सो टू कीप थिंग्स सिंपल ओवर हियर एंड व्हाटएवर वी स्टार्टेड सो फार इन आवर टेक्स्ट, हमने यही देखा है कि जहां पे पैसे होंगे वहां पे वापस करेंगे. अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या होता है? यही होता है. प्रैक्टिकली ये होता है कि व्हेन यू गेट अ लोन, नॉट अ लाइन ऑफ क्रेडिट, अ लोन, फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन लेंगे 1 साल के लिए, तो यू विल बी पेइंग इट बैक इन installments, and installment will include your principal plus interest both, यानी वो दोनों चीजें बीच में ऐड होती जाएंगी. साल के आखिर में आपका सारा लोन would be paid off. But this is not the case over here. It's a line of credit जो कि इमरजेंसी में लेते हैं. इमरजेंसी में उसने लिया है, जब पैसे होंगे तो वापस करेगा. और यहाँ पर अगर मैं 15,000 रख लूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि वापस कर सकता. ठीक है. So keeping things simple, I cannot pay back 27,000. So whole of this 27,500 would become my Opening for the next. opening for the next, closing for this month and opening for the next. I'm not paying back anything. सही है? So 27,500 would become opening for this one. Okay, now let's calculate. 27,500 plus 183,700. ये कैश कलेक्शन होगी. Yes, हो गई? Yes, sir. Minus 55,000. Minus 68,000. Minus 10,000. Minus 60,000. 18,000. 18,200 excess or deficiency? Excess. Excess. And out of this, 15,000 will be minimum cash balance. Now once again, you are left with 3,200. Can you pay back your loan? No. अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं ये करता, कंफ्यूज हूँ क्या करूँ एग्जाम में, और मैं कहता चलो यार यहाँ पे थोड़े से पैसे वापस कर दो, 12,000 मैं वापस कर देता. पहले तो मुझे 12,000 की कैलकुलेशन करनी पड़ती कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसमें वो कितना है, वो एक और लंबा मसला था. फिर जब मैं वो कर लेता और यहाँ पर आता तो यहाँ पे मेरे पास ये बैलेंस कम हो जाता, 12,000 से कम हो जाता, ये फिर 12,000 से कम हो जाता, तो मुझे फिर लोन लेना पड़ता. Yes. ठीक है.
तो फिर इट वुड हैव Huge बिकम ह्यूज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? ठीक, तो इस वजह से to keep things simple even in exam, if you do not have enough money to pay back your loan, you won't pay back. You won't pay back in parts. Let's put it like this. Parts में वापस नहीं करना, पूरे पैसे हैं आपके पास, कर्जा वापस कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ तो कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे. Okay, so this one is done. That means your closing balance over here would be 18,200. You are not paying back. This 18,200 will become your opening balance for the next one. ठीक? The fourth quarter, 18,200 plus 136,000. हो गया? Okay, minus 50,000, minus 60, 60, 10, 10, 60, 16, 78,200, 78,200. 200. ठीक? दोबारा करें सर। गलत है, मैं तो खुश हो गया कि लोन वापस हो जाएगा. Yes, sir. ओके, दोबारा करें. 18,200 plus 136,000. 154,200 इसका है plus Cash collection. Yes sir. Total cash available. Minus 50,000. Yes. Minus 60,000. Yes. Minus 10,000. Minus 16,000. Sir 18,200. 18,200 फिर आ गया. Yes sir. इसका मतलब आप लोग फिर अपना कर्जा वापस नहीं कर सकते. So this is the first question we've done so far, including our text questions, जिसमें कर्जा वापस नहीं हो रहा. बस ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. इसका मतलब इसके बाद जब मैं बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में मैं लायबिलिटीज के अंदर पेबल, लोन पेबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन 27,000 ये भी लिखूंगा और साथ इसका जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा वो सारा का सारा किधर जाएगा? Income statement. इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस में. और क्या आपने पे कर दिया है तो बैलेंस शीट में जाएगा करंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट पेबल में. समझ आ गई है इस बात की? समझ आ गई है? अगर इसी सिनेरियो के बाद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो आपको पता है कैसे बनाएंगे क्लास? एक बार फिर आपको बताता हूं, पहले इसको सॉल्व करता हूं फिर बना के बताता हूं. चलिए, ओके जी, लेट्स सॉल्व दिस वन क्लास. टोटल, so now for total the opening balance for the whole year is opening balance for the whole year 13,000 1st January Yes, sir, में yes. 13,000 और क्लोजिंग कितना आ रहा है? 18,200. 18,200. ठीक है, 13,000 ये आ गया. इसके साथ जितनी भी आपकी कैश कलेक्शंस थी वो सारी ऐड हो जाएंगी, जितनी भी कैश पेमेंट्स थी वो सारी माइनस हो जाएंगी. ठीक, और साथ कैश कलेक्शन में आपने 27,000 को ऐड करना है. The answer should be 18,200. If this is the case, your question is right. If this is not the case, your question is wrong. Do you want to check? Yes, sir. Correct? Yes, sir. Let's check. 13,000 plus 110,000, 177,500, 183,700, 136,000 सबको ऐड करना है. 13,000 plus 110,000 plus 177,500 plus 183,700 plus 136,000 ऐड हो गया सारा. ये आपके पास आ गया सारा कैश अवेलेबल. ठीक, और इसके साथ ही यू विल हैव टू ऐड 27,000 more. Yes, sir. हो गया. अब माइनस करें, माइनस करेंगे पहले परचेजेस को. 65,000, 75, 55, 50 ये सारे इससे माइनस करने हैं, 4 फिगर्स. कर दिया माइनस सारे? Yes, sir. ओके, नाउ माइनस 268,000, Yes, sir. माइनस 40,000, Yes, sir. माइनस 76,000. 76. Yes, sir. ये आ रहा है. यही आ रहा है. इसका मतलब आपका सारा क्वेश्चन ठीक. ठीक है, डन. ओके, अब आते हैं नहीं, अब आते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इनकम स्टेटमेंट. ओके, नाउ हाउ डू यू मेक दिस इनकम स्टेटमेंट? सिंपल सेल्स. ठीक है, कैश कलेक्शन नहीं, सेल्स. सेल्स की फिगर जो इसमें नहीं है आप लिख देंगे. ठीक है, व्हाटएवर इट इज लिख दिया. माइनस सीजीएस. इसका सीजीएस को फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड का होगा कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये भी हो गया। Yes, sir. दिस विल गिव यू GP. gross profit, then you will subtract operating expenses which will include your administrative and selling and marketing. ये भी हो गया। This will give you EBIT. earning before interest and tax। अब हमारे काम की चीज है इधर interest expense, ठीक है? interest expense पे आते हैं। 27,000 is your loan और लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 0.5. पर क्वार्टर, ठीक है? So how would you calculate? 27,000 multiply by 0.5% और फिर मल्टीप्लाई बाय 4। 4 क्वार्टर्स पूरे हो गए, आपने अब तक पैसे वापस नहीं किए, चारों क्वार्टर का इंटरेस्ट आपके ऊपर है जी। अमाउंट 5,400। सो दिस विल कम हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लेकिन सर ये तो पे नहीं किए हैं, फिर भी आएगा। क्या ये सारे पैसे आपको मिल गए ऐसे ऐसे? नहीं, मुझे तो सिर्फ कैश कलेक्शन के पैसे मिले। क्या ये सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पे कर दिए? नहीं, मैंने तो वो पे किया जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मटेरियल। तो ये देखें इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल बेस पर है, ठीक है, कैश बेस पर नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चीज है? बैलेंस शीट में एसेट साइड तो सारी जो भी होगी आप लिख दें। लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में दो चीजें हैं। एक आपका इंटरेस्ट पेएबल, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया ना, अब इसको यहां पर लिखिए इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, मैंने यहां पे ये मेरे सामने क्या मैंने पे किया? आई हैव पेड। ओके, सर ये 540 आ रहा है। 540 है। कैलकुलेशन क्या की है दोबारा देखें, क्लास दोबारा चेक करें। 27,000 काम डाउन 27,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5% का मतलब है 0.5 डिवाइड बाय 100 Yes, sir. which means 0.005। सही है, और फिर मल्टीप्लाई। सही है, हो गया। आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाए बैलेंस शीट टू मिडिल क्लास। इंटरेस्ट पेएबल, you haven't paid back the interest of 540, so this 540 would come over here, interest payable। और इसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म लोन पेएबल। शॉर्ट टर्म लोन भी अभी तक से आपने वापस नहीं किया, वो कितना है? 27,000। बाकी सारी चीजें एज इट इज, जो भी गॉट द आइडिया। दिस पॉइंट इज न्यू, ठीक है, फॉर यू सो फार। दिस पॉइंट इज न्यू फॉर यू सो फार, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड these points, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको मसला ना हो। अपनी तरफ से व्हाटएवर इज पॉसिबल मैंने आपको सारे ट्रिक्स बता दिए, बाकी अब आप डिपेंड ऑन यू। साथ ये सवाल ये है सर, वो आपने पहले ये 27,500 इसका थोड़ा कांसेप्ट क्लियर नहीं था सर। 27,500 कैश बजट से ये वाला 27,500। ओके, so I have an excess of 27,500. Whenever I have excess cash, so normally I pay back my loan. This is what I do. Okay, मेरे पास excess कितना है? I need a minimum cash balance of at least 15,000. So I have excess of 27,500, and let's say I have a minimum cash balance, should have a minimum cash balance of 15. So that means I'm left with how much? 12,000. 12,500. I can pay back my loan, but only to the extent of 12,500. For simplicity purposes, you should not pay back your loan in these questions or in the exam unless you have the full amount of cash, full amount of loan plus interest. अगर रुपए भी कम होगा आप लोग वापस ना करें, बस। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। हो गया, डन। चलो जी अजीज, डिविडेंड तो सिंपल है, सारे के सारे डिविडेंड। इसके बाद डिविडेंड ये है, इसके बाद ये सारी चीजें, ओपनिंग बैलेंस, एक्सेस, ये सारी चीजें सारी दोबारा से। अच्छा, ओके, इसको मैं दोबारा से आपको